Assalamualaikum, myself Nadia Basir, registration number 21T is 68. The lab number 4 of DSP, digital signal processing, that is about analyze discrete time invariant. नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें है टास्क नंबर हमारा 1 है कि इसमें बताना है कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्नल एंड सिस्टम and explain the key characteristic of each and provide example to illustrate their role in the context of the signal processing. सबसे पहले हम सिग्नल को डिफाइन करेंगे कि सिग्नल होता क्या है। तो जो हमारे पास सिग्नल है, जो सिग्नल हमारे पास होता है टाइम वेरिएंट और quality that carry information. It can be function of time, space, or any other variable. Signal can be categorized in different types such as continuous time signal and log signal. जो discrete time signal तो digital signal होता है depending upon the nature of independent variable. Independent variables कौन कौन से होते हैं? Time, space, etc. Examples of signal include audio waveform, images, sensor reading or any other data that change over time and space. नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ प्रोसेस और डिवाइस दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन अ सिग्नल. इट कैन बी अ फिजिकल, मैथमेटिकल ऑपरेशन और अ कम्बिनेशन ऑफ द बोथ. नेक्स्ट ये है कि हमारे पास जो सिग्नल है वो मैथमेटिकल भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है, और इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल है वो सिस्टम है. ठीक है, सिस्टम हमारे पास लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, टाइम इनवेरिएंट भी हो सकता है, टाइम वेरिंग भी हो सकता है, कैजुअल भी हो सकता है, नॉन कैजुअल भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम कौन कौन सी है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, फिल्टर लॉगरिथम हो गया, इवन नेचर सिस्टम लाइक अ ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम दैट प्रोसेस ऑडियो सिग्नल. नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, कंसिडर अ ऑडियो इक्वलाइजर एज अ एग्जांपल. The audio signal is the input and equalizer system adjust the amplitude. जो इक्वलाइजर है वो एम्पलीट्यूड को एडजस्ट करेगा डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज कंपोनेंट. जो हमारे पास आउटपुट होगी इज इक्वलाइज ऑडियो सिग्नल विद मॉडिफाइड फ्रिक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक. नेक्स्ट हमारा टास्क नंबर बी ये है कि हाउ डज अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट, जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट है, प्ले a role in a DSP considering the mathematical simplicity and superposition and efficiency in a frequency response analysis. अब इसमें ये है कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट जो होता है वो वाइटल रोल प्ले करता है इन DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ड्यू टू several key characteristics that make them particularly well suited for analysis and manipulation of the signal. Here are the some keys that LTI, that a linear time invariant, are important in DSP. First, that can mathematically simplicity. LTI simple has mathematical properties that simplify and analyze design of signal processing system. The linearity property allow for use of superposition, make it easier to decompose and complex signal into simplest component. Next हमारे पास superposition principle है. The superposition principle state that the response of an LTI, linear time invariant system, to the sum of multiple input is equal to the sum of the response of the system of each individual input signal. This property simplifies the analysis of complex system as engineer can break down problem in the simpler components and analyze them individually. नेक्स्ट हमारे पास जो है कि इम्पोर्टेंट LTI इम्पोर्टेंट है वो है कन्वोल्यूशन ऑपरेशन. The response of LTI system to an input signal can be expressed as a convolution of an input signal and a system impulse response. That is, this convolution operation is a mathematically straightforward and is efficiently implemented in both time and frequency domain. It allows for effect analysis of systems behave in a key except in DSP. नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम स्टेबिलिटी होती है. LTI सिस्टम कैन बी एनालाइज फॉर स्टेबिलिटी यूजिंग मैथड सच एज फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एंड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, Fourier transform and Laplace transform. Stability analysis is necessary in designing systems that do not exhibit or uncontrolled behavior over time.
नेक्स्ट क्या है कि LTI system are flexible and can easily adopted for various application in DSP such as filtering, modulation and simple system identification. This simplicity can well understood behavior of LTI system make them foundation of developing more complex signal processing algorithm. नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर है, जो हमारे पास टास्क नंबर सी है, व्हाट इज अ कॉमन मेथड फॉर सिग्नल डिकम्पोजिशन, focusing on technique like impulse decomposition, step function analysis, even function decomposition, Fourier transform, and then explain करना है इसको. अब इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि सिग्नल डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स सिग्नल. वो सिग्नल जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल होते हैं सिंपल को उसको सिंपल कंपोनेंट्स में करते हैं और जब बेसिक्स फंक्शन में करते हैं कि इसलिए कि अंडरस्टैंड इट कैरेक्टरिस्टिक और अ फैसिलिटी फॉर द एनालिसिस. Various methods are used for signal decomposition. Here is some common technique that can include impulse decomposition, step function analysis, even or decomposition for analysis. सबसे पहले हमारे पास इम्पल्स डिकम्पोजिशन क्या होता है. डिकम्पोजिशन इसमें हमारे पास क्या होता है, इन जो हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ अ सिग्नल इन अ सीरीज ऑफ इम्पल्स और अ डेल्टा फंक्शन. इसमें क्या होता है प्रोसेस, इससे क्या होता है एक्सप्रेशन अ सिग्नल सम ऑफ स्केल और शिफ्ट इम्पल्स ईच रिप्रेजेंटेड अ स्पेसिफिक इंस्टेंटेनियस इवेंट और चेंज इन अ सिग्नल. एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन है हमारे की इम्पल्स डिकम्पोजिशन के यूज फॉर एनालिसिस सिग्नल विद शॉर्ट ट्रांसमिशन और सदर चेंज सच एज इम्पल्स रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ सिस्टम. नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टेप. नेक्स्ट हमारे पास स्टेप फंक्शन एनालिसिस है. स्टेप फंक्शन एनालिसिस हमारे पास क्या है डिकम्पोजिशन ऑफ सिग्नल इन अ सीरीज ऑफ स्टेप फंक्शन और यूनिट स्टेप में जब स्टेप फंक्शन में उसको डिकम्पोज करेंगे. ठीक है. आगे हमारे पास प्रोसेस क्या होता है एक्सप्रेशन ऑफ सिग्नल एज सम ऑफ स्केल्स एंड शिफ्ट step function each represented a constant value over a specific time. नेक्स्ट हमारे पास इवन और डिकम्पोजिशन क्या होता है. इवन और डिकम्पोजिशन क्या होता है डिकम्पोजिशन अ सिग्नल इनटू इवन एंड ओड. इसमें क्या होता है कि एक्सप्रेशन अ सिग्नल एज ए सम ऑफ ईच इवन और ओड पार्ट वेयर द इवन पार्ट इज सिमेट्रिक अबाउट. जो हमारे पास इवन पार्ट होगा वो सिमेट्रिक होगा. द रीजन एंड द ओड इज एंटी सिमेट्रिक. जो ओड है वो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास फोरियर एनालिसिस क्या होता है डिकम्पोजिशन अ सिग्नल. उसको कहते हैं सिग्नल को हम लोग डिकम्पोज करते हैं इन अ सम ऑफ द साइनसॉइडल और अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट यूजिंग अ फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि each of these decomposition method contribute the breaking down of signal in different way, allowing for deep understanding of signal characteristic that are analyzed and visualization, filtering and reconstruction, simple system identification, compress and coding. नेक्स्ट हमारा टास्क नंबर डी है कि व्हाट इज़ अ कन्वोल्यूशन एंड हाउ डज इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन कन्वोल्यूशन एंड एलिब्रेट इट पॉइंट इन वेरियस DSP एप्लीकेशन सच एज फिल्ट्रेशन सिग्नल प्रोसेसिंग एंड सिस्टम एनालिसिस. सबसे पहले हमने बताना कन्वोल्यूशन होता क्या है. Convolution is a fundamental mathematical operation in DSP that play a role in various application. Convolution हमारे पास mathematical operation होती है that combine two signal to produce a third signal representing the interaction between the two original signal. In the time domain, convolution is often denoted as convolution denote किसे किया जाता है स्टार से. ठीक है. अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि अब जो हमारे पास DSP में ऑपरेशन है फिल्ट्रेशन प्रोसेसिंग एंड सिग्नल. जो हमारे पास फिल्ट्रेशन होता है कन्वोल्यूशन इज वाइडली यूज in DSP for filtration operation. In this context, one of the signal typically representative जो एक सिग्नल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इनपुट सिग्नल एंड अदर रिप्रेजेंट द फिल्टर इम्पल्स रिस्पॉन्स. इसमें इंपॉर्टेंस इसकी क्या होती है ये एनालाइज करता है हाउ सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक द इम्पल्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट इनपुट्स. सेकेंड हमारे पास क्या है सिग्नल प्रोसेसिंग हमारे पास क्या होता है कन्वोल्यूशन इज अ की टूल फॉर एनालिसिस लीनियर टाइम इनवेरिएंट. सिग्नल प्रोसेसिंग कन्वोल्यूशन इज अप्लाइड टू प्रोसेस सिग्नल रिप्रेजेंटिंग द इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड द इनपुट सिग्नल. ये सिस्टम और इनपुट सिग्नल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसके बारे में बताता है. ये यूज़ किया जाता है फॉर स्मूथिंग डिफरेंशिएट
differentiating and integration. Convolution help to modification of the signal to exert a specific feature or achieve desired characteristic. नेक्स्ट क्या है सिस्टम एनालिसिस. सिस्टम एनालिसिस अबाउट इट हेल्प टू डिटरमाइन द सिस्टम आउटपुट फॉर एनी इनपुट सिग्नल बाय कन्वोल्यूशन द इनपुट सिग्नल विद द सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स. नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें कि कन्वोल्यूशन जो होता है हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन डीएसपी दैट प्ले अ रोल इन वेरियस एप्लीकेशन. Really have task number E have when do we correlate to signal and what are the key steps or scenarios where signal correlate in various fields such as communication and also spare radar and sonar, image processing, biomedical signal processing, control system, wireless communication and cinematic signal processing. सबसे पहले signal correlate is a mathematical operation होता है that measure the similarities between two signals as a function of their relative time and relative time decorrelation operate can be broadly categorized into two type क्रॉस कोरिलेशन एंड ऑटो कोरिलेशन. फर्स्ट जो होता है हमारे पास क्रॉस कोरिलेशन क्या होता है मेजर द सिमिलैरिटीज बिटवीन टू सिग्नल और अब जो इसमें हमारे पास ऑटो कोरिलेशन होता है मेजर द सिमिलैरिटीज बिटवीन अ सिग्नल एंड टाइम डिले विजन ऑफ. अब कोरिलेशन की जो हमारे पास एप्लीकेशंस है वो कम्युनिकेशन सिस्टम है, रडार सिस्टम है, बायो मेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग है, मीन्स ये क्रॉस कोरिलेशन की है. अब इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है इन वायरलेस कम्युनिकेशन क्रॉस कोरिलेशन इज यूज फॉर सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन एंड डिटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन सिग्नल इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज और इंटरफेरेंस. वाइल जो हमारा नेक्स्ट है रिडार सिस्टम है जो हमारा क्रॉस कोरिलेशन का है. क्रॉस कोरिलेशन हेल्प इन डिटेक्टिंग एंड ट्रेसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट बाय कंपेयरिंग ट्रांसमिटेड एंड रिसीव सिग्नल. और बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग ये सारे जो हमारे पास हैं क्रॉस कोरिलेशन के हैं. बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होता है क्रॉस कोरिलेशन इज इम्प्लाइड इन अ टास्क लाइक इलेक्ट्रो कार्डियम ECG signal analysis to detect specific pattern. नेक्स्ट हमारे पास ऑटो कोरिलेशन में एप्लीकेशन कौन सी है स्पीच प्रोसेसिंग, ऑटो प्रोसेसिंग, वाइब्रेशन एनालिसिस. ठीक है इसमें हमारे पास क्या है स्पीच प्रोसेसिंग में क्या होता है ऑटो कोरिलेशन इज यूज इन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम फॉर फीचर एंड पैटर्न मैचिंग. ऑडियो प्रोसेसिंग क्या है इन ऑडियो एप्लीकेशन ऑटो कोरिलेशन हेल्प इन पिच डिडक्शन एंड हार्मोनिक एनालिसिस. while in vibration analysis auto correlation is applied in structural health monitoring to identify and analyze vibration pattern. अब की एप्लीकेशन है सिनेरियोज क्या है एप्लीकेशन इसमें कौन कौन सी है सिग्नल डिटेक्टिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, बायोमेडिकल सिग्नल एनालिसिस, radar and sonar system, audio and music process, vibration analysis, location in sensor. अब इसमें सिग्नल डिटेक्शन एंड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है क्रॉस कोरिलेशन इसमें यूज होते हैं इन कम्युनिकेशन सिस्टम टू डिटेक्ट एंड सिंक्रोनाइज रिसीव सिग्नल. वाइल पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होती है बोथ क्रॉस कोरिलेशन एंड ऑटो कोरिलेशन आर एम्प्लॉयड होता है. बायोमेडिकल में क्या होता है ऑटो कोरिलेशन यूज होती है फॉर अ टास्क. रिडार और सोनार में क्या यूज़ होती है इसमें क्रॉस कोरिलेशन यूज़ होती है. वाइल इन ऑडियो एंड म्यूजिक प्रोसेसिंग में ऑटो कोरिलेशन यूज़ होती है फॉर ऑडियो प्रोसेसिंग टू डिटेक्ट पिच एंड हार्मोनिक कॉन्टैक्ट. एंड वाइब्रेशन एनालिसिस में ऑटो कोरिलेशन यूज़ होती है दैट इज अप्लाइड इन स्टैटिस्टिकल हर्ड मॉनिटरिंग टू एनालाइज वाइब्रेशन पैटर्न डिटेक्ट इन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हमारे पास कोड के टास्क हैं जो हमारे पास 4 कोड हैं. इसमें टास्क नंबर 1 ये है कि मेक यू ऑन कस्टमाइज फंक्शन दैट टेक 2 इनपुट सिग्नल फ्रॉम यूजर एंड शो कन्वोल्यूशन सम ग्राफिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन कन्वोल्यूशन सम कर रहे हैं. इनपुट सिग्नल हमने लोग ले रहे हैं यूजर से x और h दो इनपुट्स हैं. कन्वोल्यूशन में हम y इक्वल टू कन्वोल्यूशन x h. ठीक है हम उसको आगे प्लॉट करेंगे. प्लॉट के लिए हम स्टेम का फंक्शन x लेबल y लेबल पे टाइटल हम इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल देंगे. एडजस्ट प्लॉट करेंगे और एंड होगा मीन्स फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं. हम जब इसको रन करेंगे तो ये हमारे कमांड बॉक्स में सिग्नल 1 और सिग्नल 2 के बारे में पूछेगा. ठीक है अब जो है इसको कन्वोल्यूशन अब इसमें सिग्नल 1 में करती हूँ 1,2,3 और इंटर और सेकेंड इनपुट कौन सी दूंगी 2, 1 और 3.
ठीक है, अब मैं इसको करूँगी तो हमारे पास जो कन्वोल्यूशन ड्रॉ आएगी, ठीक है, वो हमारे पास ये आ रही है, सिग्नल 1 जो है वो 2 पे और सिग्नल 2 1 पे और सेकंड 2 और 3, और उसमें कन्वोल्यूशन रिजल्ट जो ड्रॉ हुआ है वो है 0 1 3 4 5। नेक्स्ट हमारा जो टास्क नंबर 2 है, टास्क नंबर 2 है, उसमें हमारे पास ये है कि इसमें जो मैंने फंक्शन है स्टेप बाय स्टेप कन्वोल्यूशन करनी है, और और इसमें हमने फ्लिप एंड साइड मेथड टू शो कन्वोल्यूशन हमने करनी है। ठीक है, हम पहले स्टेप बाय स्टेप कन्वोल्यूशन करेंगे, हम दो इनपुट लेंगे, ठीक है, फिर उसकी लेंथ ऑफ रिजल्टिंग कन्वोल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे और सीक्वेंस होगा, फिर फ्लिप करेंगे, फ्लिप का फंक्शन, और फिर क्रिएट फिगर करेंगे, परफॉर्म करेंगे कन्वोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। उसमें कन्वोल्यूशन स्टेप जो होगा सम ऑफ द करंट स्टेप होगा, इसमें क्या होगा, के स्टार्ट मैक्सिमम 1 एन माइनस लेंथ प्लस 1, और मिनिमम होगा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के फंक्शन डिफाइन किए हैं, और उसके बाद एंड होगा। फिर हम लोग प्लॉट करेंगे इमीडिएट रिजल्ट की जगह सब प्लॉटिंग करेंगे स्टेम्प, और फिर होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ की हम दोनों की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं जो हमने पिछली लैब्स में भी किया। ठीक है, उसमें वाई लेबल और एक्स लेबल, जिसमें हम लोग इसको वो करेंगे, मतलब कि डिस्प्ले करेंगे, जिसमें वो टाइटल होगा जो इनपुट सिग्नल होगा। उस पर हम इसमें कितने दफ़ा सब प्लॉटिंग करें, 2 दफ़ा सब प्लॉटिंग कर रहे हैं, डिस्प्ले होगा, और पॉज जो होगा वो 1 सेकेंड का होगा, सिर्फ 1 सेकेंड का पॉज होगा रिजल्ट को देखने के लिए। अगर पॉज में यहाँ पे करूँ 5 सेकेंड का, ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होगा। अब अगर अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हम लोग रन करेंगे, ये रन हुआ। कन्वोल्यूशन बाय स्टेप फर्स्ट इनपुट में दूंगी 1 3 4 2 2 4 5। अब ये आगे हैं, और अब ये हमारे पास कन्वोल्यूशन रिजल्ट आ गया है। ज़ीरो पे ये करेगा कि इनपुट हमारे पास जो हमारे पास ऑरेंज लाइन है ये एच ऑफ माइनस एन होगा, और दूसरा जो ब्लू लाइन है वो एस ऑफ एक्स ऑफ एन होगा। दो कन्वोल्यूशन इनपुट सिग्नल है, उसके बाद हमारे पास कन्वोल्यूशन रिजल्ट आया जो 4/5 स्टेप 4/5 का है कि एक्स वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड और एक्स एक्सिस पे एन है। ठीक है, अब जो ब्लू लाइन हमारे पास कन्वोल्यूशन रिजल्ट है जो एक्स ऑफ एन हमारे पास आया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि टास्क नंबर 3, कंप्लीट द रिस्पॉन्स ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, इनपुट इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन, और इसमें ये सब कुछ करना है कि सबसे पहले हम इसके फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि वाई एक्स ऑफ एन कन्वोल्यूशन है, और उसके बाद लेंथ वगैरह डिफाइन की, और आगे जब हमने इसकी एग्जांपल ली है कि एक्स 1 2 ये डिफरेंट नंबर दिए हैं, एक्स ऑफ एन -6 और 4 है, और एच जो है 2/3/2 -1, और फिर कन्वोल्यूशन किया, फिर टाइटल हमने दिया, स्टैम्प हमने यूज़ किया। अब मैं जब इसको रन करूँगी तो इसको इसको रन करूँगी तो ये हो रहा है, ये इसमें इसको सेव कर रही हूँ, और यहाँ पे ये रन होगा, और अब जो हमारे पास है टास्क नंबर 4 है, इसमें वी हैव इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, मीन्स हमें गिवन है इम्पल्स रिस्पॉन्स और एक्स ऑफ एन है। इफ यू फीड शिफ्ट विजन ऑफ इनपुट टू द सिस्टम व्हाट काइंड आउटपुट सिग्नल वी रिसीव, अगर हम लोग शिफ्ट सिग्नल दें, शिफ्ट विजन दे तो क्या होगा। पहले इम्पल्स रिस्पॉन्स एच हमने डिफाइन किया हुआ है, फिर एक्स ऑफ एन जो हमें डिफाइन हुआ हुआ है क्वेश्चन में, फिर उसके बाद हमने कन्वोल्यूशन ऑपरेशन की है, फिर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन को हमने प्लॉटिंग की है, दो दफ़ा सब प्लॉटिंग की है 3, और स्टेम का फंक्शन यूज़ हुआ है एक्स लेवल और वाई लेवल पे एम्पलीट्यूड के। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने सब प्लॉटिंग किया, जब हम इसको रन करेंगे तो हम लोग दे सकते हैं कि पहले इनपुट सिग्नल जो था एक्स ऑफ एन था, फिर इनपुट इम्पल्स जो हमारे पास आया है वो हमारे पास है एच ऑफ एन। ठीक है, जो हमने डिफाइन किए हुए थे वैल्यू जो दी थी, उसके बाद हमारे पास आउटपुट सिग्नल जो आया है वो एक्स ऑफ एच और एच ऑफ एन जो था उसका आउटपुट सिग्नल वाई ऑफ एन हमारे पास आया है।